Hello students, class 5th. Welcome back in the next video. Today we are going to learn new chapter that is from your English fairy. Chapter 3rd. The title of the story of this chapter 3rd is Born Again Arunima Sinha. This is not an ordinary story. Before to begin, all the students are requested to please be ready with your books so that you will understand this story nicely. Let's begin the story. At first let's do the warm up that is given in your book. There is some picture also are there. Related with this picture, there is some small group discussions that are given here. Number 1, which of these activity would you like to do when you grow up? There in the picture it is given here. There is scuba diving, one, and second one is there paragliding. These all types of activities are given here in that picture. Why would you like to do it? आपको ये करना क्यों पसंद है? Some sort of questions it is asked. How would you feel if you did it? आपको कैसा महसूस होगा ये करके? What do you think would be the scariest bit? What do you think? जो खतरनाक कैसा महसूस होगा? जो What do you think would be the scariest bit? कुछ थोड़ा बहुत खतरों से भरा हो तो आपको कैसा महसूस होगा? So these are the warm up activities that you can think and you can make of your own sense. How do you feel about this? Let's move to this story. Read the interesting passage on one of the bravest mountaineers of India. So today in this story we are going to learn about the bravest mountaineers of India, जो भारत के साहसी पर्वतारोहण जो भारत के हैं, जो बहुत ही साहसी, उनके बारे में about them this story is based. उनके बारे में ये आधारित है. तो one step, it's a scene when the mountaineer at the time when they are climbing on the mountain. तो उसका सीन है यहाँ पे थोड़ा सा some of the conversation that it is done during the time when they are climbing on the mountain. Take one step at a time. Don't give up. I think we should turn back. The slope is too difficult. So these are the statements is from group of mountaineering saying to one to another persons. I think we should turn back. हमें वापस जाना चाहिए. The slope is too difficult. यानी कि ढलान, slope that means ढलान, बहुत ही कठिनाई से भरा हुआ है. The Sherpa's voice interrupted. उसी समय शेरपा, ये किसने कहा? शेरपा, who knows about the climbing, who just as a गाइडर. तो वो एक गाइडर के रूप में है शेरपाज. वो कहता है कि Arunima's thought as she took one painful step after another up the steep slope of Mountain Everest. तो
कारण शेरपा ये सारे चीज़ों को देखता है बिकॉज ही वॉज जस्ट स्टूड, ही वॉज जस्ट क्लाइंबिंग जस्ट बिहाइंड हर। तो ये सारे चीज़ को देखता है और वो कहता है कि अरुणिमा थॉट एज सी टुक वन पेनफुल स्टेप आफ्टर अनदर बाय द स्टेप स्लोप ऑफ माउंटेन एवरेस्ट। यानी कि माउंट एवरेस्ट का एक ढलान, बहुत ही गहरा ढलान, जो कि जिसमें कि बहुत ही कठिनाई से वो अपने एक एक कदम को रख रही थी। ये चीज़ों को देखकर वो शेरपा बोल रहा था हम लोग को वापस जाना चाहिए। शी टर्न टू हिम, तब शेरपा की अपने फेस को टर्न करते हुए, पीछे की ओर देखते हुए वो कहती है, आई विल नॉट टर्न बैक, मैं वापस नहीं जाऊंगी। आई विल क्लाइंब टू दी समिट। दैट मीन्स वो जिस शिखर में पहुंचना चाहती उस शिखर में मैं पहुंचूंगी कहती है। यानी कि वो शिखर तक पहुंचूंगी करके वो कहती है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। द शेरपा न्यू इट वॉज यूजलेस टू अर्गू। शेरपा को मालूम था कि उससे बहस करना बेकार है। द पास्ट फ्यू वीक्स हैड गिवन हिम अ ग्लिम्स ऑफ अरुणिमा's विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, बिकॉज पास्ट कपल ऑफ वीक्स एगो, है ना, उनकी आंखों में वो झलक पहले से ही दिख रहा था। अरुणिमा's विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, बिकॉज सी हैज़ इच्छा शक्ति, उसकी कुछ हफ्तों पहले उसकी इच्छा शक्ति बहुत बढ़ गई थी और दृढ़ संकल्प, जिसके कारण से शेरपा को मालूम था कि इट इज़ यूजलेस टू बी डिस्कस विथ हर, बेकार होगा कि उससे बहस करना नहीं है। द माउंटेन लूम्ड बिफोर देम एज सी कंटिन्यू द क्लाइंब, और अस्पष्ट रूप से माउंटेन, जब वो चढ़ रही थी अस्पष्ट रूप से माउंटेन दिख रहा था, यानी कि पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था, बिकॉज स्टिल देर इज सम स्टेप्स लेफ्ट टू क्लाइंब अप टू द समिट। यानी कि ऊपर शिखर तक पहुंचने के लिए बहुत से कदम और भी बाकी थे। Arunuma's thought went back to the incident on. While she was climbing at that time, she was thinking about the incident that took place on 11 अप्रैल 2011, जो कि 11 अप्रैल 2011 में एक घटना घटे, उसको वो घटना याद आया। इट हैड चेंज हर लाइफ कम्प्लीटली, जिसके कारण से उसका जीवन पूरा चेंज हो गया था, परिवर्तन। हैंड ओवर योर बैग एंड गोल्ड चेन नाउ, तब वो वही इंसिडेंट को वो सोचती है, वो रिमेम्बरिंग करती है। तो हैंड ओवर योर बैग एंड गोल्ड चेन, तुम्हारे आपके सोने के चेन और बैग हमारे हवाले कर दो अब भी। शी फेल्ट डिफेंसलेस इन द जर्नल कंपार्टमेंट ऑफ द पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेवलिंग फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली। जब वो when she was traveling to in the पद्मावती एक्सप्रेस लखनऊ टू दिल्ली, यानी कि लखनऊ से दिल्ली की ओर वो जा रही थी, तो उस समय वो क्या थी, निहत्ती थी, अकेली थी। तो वो जा रही थी जिसमें कि वो पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ी थी और जनरल कंपार्टमेंट में थी। बोर्न एंड ब्राउट अप इन अंबिकानगर इन उत्तर प्रदेश, और वो उसका जन्म अंबिकानगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। शी वॉज गोइंग फॉर एन एग्जामिनेशन टू ज्वाइन द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। डिफेंस सर्विस के लिए वो एग्जामिनेशन के लिए, वो CISF की जॉब के लिए, वो एग्ज़ाम के लिए वो जा रही थी। अरुणिमा लुक्ड एट हर अटैकर्स, उस समय उसको अटैकर्स, हमलावर लोगों ने उसको घेरा हुआ था, उनकी ओर देख रहे थे। वाई शुड आई गिव अप द प्रीशियस लिटिल दैट आई हैव टू दीज रॉबर्स, मैं इतना कीमती चीज़
मैं ये चोर लोगों को क्यों दूँ करके वो कहती है। वाई शुड आई गिव अप, क्यों मैं आप चोरों को दूँ। सी थॉट, वो अपने आप मन में वो विचार करने लगी, तो सोचने लगी। सी क्लच्ड हर बैग टाइटली एंड मूव्ड अवे फ्रॉम द गैंग, और अपने बैग को कस के अपने पूरे हाथों से बैग को अपने सीने से लगाकर वो कस के पकड़ी, और वहाँ से वो रॉबर्स के गैंग्स के वहाँ से वो मूव्ड हो गई, वहाँ से चली गई। द रॉबर्ट्स ट्राई टू स्नैच हर बैग, तो उसी समय रॉबर्ट्स उसका बैग छीनने के लिए कोशिश किया। शी रेसिस्टेड एंड फाउट बैक, और उन्होंने क्या किया, रेसिस्ट, प्रतिरोध किया, और उसका जवाब उसने दिया। बट शी वॉज ओवर पावर्ड, उसका जवाब ये दिया कि उन्होंने उन सभी का विरोध करते हुए हाथों से अपने हाथ पांव चलाकर वो उनसे उनका प्रतिरोध किया। दे देन पुश हर आउट ऑफ हर रनिंग ट्रेन, तब उन्होंने क्या पाया, दैट द रोबर्स फाउंड दैट दे कुड नॉट कंट्रोल हर एंड सडनली दे पुश्ड हर आउट ऑफ द रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से उसे गिरा दिया। एज शी ले ऑन द ट्रैक अनेबल टू मूव ड्यू टू द सीवियर इंजरीज शी रिसीव फ्रॉम द फॉल, और वो लेटी हुई अवस्था में पड़ी रही। जब वो गिरी तो वो बहुत चलती हुई ट्रेन में वो गंभीर रूप से घायल हो गई। शी रिसीव्ड फ्रॉम हर फॉल, जिससे कि वो चलती हुई ट्रेन से गिरने के कारण से वो गंभीर रूप से घायल हुई, जिसके कारण से वो मुंह हिलडुल नहीं कर पा रही थी। अनदर ट्रेन फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन ran ओवर हर लेग एंड शी लॉस्ट कॉन्शियसनेस, और दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन से दूसरा ट्रेन आ रहा था, तो उनका पांव पर ट्रेन के ट्रैक के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हुए ट्रेन के ऊपर पांव था पटरी के ऊपर, तो उस पांव पर ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हुए ट्रेन ने उसका पांव को शरीर से अलग कर दिया, तो जिसके कारण से सी अनकॉन्शियसनेस लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस, अपना होश खो देती है। लोकल रस्ट हर्स टू अ हॉस्पिटल वेयर द डॉक्टर हैड टू एम्प्यूटेट हर लेफ्ट लेग, एंड लोकल रस्ट हर टू द हॉस्पिटल, और लोकल लोग उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की ओर लेकर आते हैं। तो एम्प्यूटेट मीन्स टू सेपरेट द लिम्स, तो उनका जो पाँव होता है थोड़ा बहुत कटा हुआ, यानी कि शरीर से में इतना गहरा जख्म हो गया था, तो जिसके कारण से उनका इन्फेक्शन फैलने लगा। तो जस्ट बिलो द नी, घुटने के ठीक नीचे उनका पाँव को काटना पड़ा ताकि उसका जिंदगी बच सके। अ वीक लेटर शी वॉज मूव टू द ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विस वेयर दिल्ली बेस्ड कंपनी प्रोवाइडेड हर विथ एन आर्टिफिशियल लेग फ्री ऑफ कॉस्ट, और जहाँ पर उसको अ वीक लेटर, कुछ हफ्ते बाद, शी वॉज मूव टू द ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और कुछ दिन वहाँ पर रखने के बाद एक हॉस्पिटल से एम्स की ओर उसे ले जाया गया, जहाँ पर दिल्ली बेस्ड कंपनी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उसे आर्टिफिशियल लेग दे देता है। इट वॉज ड्यूरिंग दोज लॉन्ग डेज ऑफ रिकवरी एट एम्स that Arunima first thought of achieving the almost impossible task of climbing Mount Everest। तब उसी समय लॉन्ग डेज ऑफ रिकवरी, यानी कि ठीक होने के बाद वो एम्स में अरुणिमा फर्स्ट पहला वो विचार करती है कि वो असंभव काम को, जो कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ना, वो सफलता प्राप्त करने की बात को वो सोचती है। When she was not struggling to walk using her artificial leg, when she was not struggling, जब वो to walk using her artificial leg, she spent her time listening about mountaineering, जब वो संघर्ष चलने के लिए, जब वो संघर्ष नहीं कर रही थी अपने आर्टिफिशियल लेग को लेकर,
तो उस समय वो बैठे बैठे वो माउंटेनियरिंग के बारे में सुनती थी। अरुणिमा loved reading about the challenges faced by climbers who had conquered Mount Everest। और अरुणिमा loved reading, उसको पढ़ना बहुत पसंद था, जिसमें कि चुनौतियों से भरा हुआ, जिस प्रकार से क्लाइंबर लोग, पर्वतारोहण लोग किस किस प्रकार के परिस्थितियों से गुजर कर उन्हें गुजरना पड़ता था, तो उन चीज़ों को वो किस प्रकार से पर्वतारोहण कठिन परिस्थिति में भी उन लोग विजय प्राप्त करते थे। माउंट एवरेस्ट में किस किस प्रकार के परिस्थिति आते थे, तो उनको वो पढ़ती थी। और शी हैड ऑलवेज लव्ड स्पोर्ट्स एंड हैड बीन अ नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर्स। और उनको स्पोर्ट्स से बहुत लगाव था और नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर जो कि वो प्लेयर बनना चाहती थी। नाउ शी डेयर टू ड्रीम अबाउट क्लाइंबिंग। अब वो हिम्मत कर रही है क्या चीज़ की, एक हाईएस्ट माउंटेन में चढ़ने के लिए विथ हर आर्टिफिशियल लेग, अपने आर्टिफिशियल लेग। अरुणिमा सुमोन करेज एंड मेट बेजेंट्री पाल, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट फॉर एडवाइस। तो अरुणिमा सुमोन अपने पूरे साहस को इकट्ठा कर कर वो बेजेंट्री पाल से मिलने के लिए वो गई। अरुणिमा, इन दिस कंडीशन यू हैव मेड, तो यू हैव मेड और made such a huge decision, known that you have already conquered your inner Everest। जब बेजेंट्री पाल से मिली तो what she said, बेजेंट्री पाल she said, you already have won, you have already conquered the Everest, inner Everest। जो अपने दिल के अंदर जो पहाड़ से भरा हुआ जो संघर्ष है उसको आपने जीत चुके हैं। और यू नीड टू क्लाइंब द माउंटेन ओनली टू शो, अब केवल आपको दिखाना है लोगों को संसार में कि आप क्लाइंब द माउंटेन ओनली टू शो, आपको सिर्फ माउंटेन पहाड़ में चढ़ने को संसार के लोगों को सिर्फ दिखाना है करके वो कहती है। ऑलरेडी आपने एक बहुत बड़ा कठिनाई को आपने एक माउंट एवरेस्ट की भांति, जो माउंट एवरेस्ट जो बड़ी ऊंची चोटी, जो कि आपके जीवन में जो कठिनाई आई, परेशानी आई, उसको आपने जीत चुका है। तो ये एक साधारण माउंटेन है जो कि संसार को आपको चढ़ के दिखाना है। तो दिस स्टेटमेंट सेड बाय बेजेंद्री पाल। On receiving encouraged response, Arunima signed up for training under Bejendri Pal at the Uttrakasi camp of the Tata Steel Adventure Foundations in 2012। तो receiving encouraging response, और यही encouraging, और जब उन्होंने साहस उनसे करेज बेजेंद्री पाल से मिला तो उन्होंने तय किया अरुणिमा ने कि ट्रेनिंग बेजेंद्री पाल उत्तराकाशी कैंप में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में इन 2012 में वो फॉर क्लाइंबिंग सी ट्रेन फॉर क्लाइंबिंग, और वहाँ पर उसने क्लाइंबिंग करने की ट्रेनिंग लेना शुरू किया। That's all for today. See you in the next video. We will do continue in the next part 2 discussion of the same story. Till then, goodbye. Take care.